Give me a second. So we have a next question. Sir, what we do to adjust the progressive lenses? Hello. I think Yes. Hello. Chilango. Hello. Sir, audible now, sir? Yeah, audible, Ilango. Please go on. சார் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு ஆக்சுவலா வந்து பேண்டாஸ்கோபி டில்ட் அது எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கு. ஸ்டில் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பவர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, சிலிண்ட்ரிக்கல் பவர். பட் இந்த சினாரியோல வந்து ட்ரபிள் ஷூட்டிங் எப்படி சார் பண்றது? பட் கஸ்டமர்ஸோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சைடு வந்து அப்பாவும் ஒரு சைடு வந்து டவுனாவும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்ல முடியுமா? Guys, don't get affected. This is a regional language. I understand that. मैं आपको question repeat करूँगा, ठीक है? Yeah, Lango, can you tell me the prescription? I have some connectivity issue. Is I'm audible? Actually, right eye power is plus 0.50 spherical. Hello. Okay. Yeah, you are audible, Ikra. I'm just taking questions one from cylinder. the participant. Plus one cylinder, 180 axis. Mm-hmm. And left eye is plus 0.5. Mm-hmm. Plus 1.75 cylinder. Mm-hmm. 170 axis. PD everything is same. Addition? Compared to old glass. Addition is 2.75. 2.75. And what is the old glass prescription? Can you quickly say? Old glass's power is the cylindrical power right eye is plus one cylinder. 0.75 cylinder. Okay. Left eye is one cylinder. Okay, Spherical so power is same. left side the cylinder power has increased, right? Yes. Yes. So right eye is 0.25 cylinder. Left eye is 0.75 cylinder is increased. 0.25 and 0.75. Axis remains same, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what exactly is the customer complaint? Customer complaints same, sir. If you ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பெண்டாவோ சம்திங் பெண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. பட் நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் பாக்குறோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் இல்ல, கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இது மாதிரி இருக்கு, பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. Okay. And what was his old prescription? Addition? Yes, sir. It's the same. Addition, everything is same, sir. Addition the is cylinder same. power only is, yes, sir. Okay. And old prescription is not having any problem? No, sir. Okay. And PD and fitting heights? Frames? Everything is same, sir. Okay. So, okay. See, the question is, customer has a difference of 0.25 cylinder in the right eye and 0.75 cylinder in the left eye. Addition remains same, spherical power remains same, axis remains same, right? And customer is having uneasiness only with one particular eye. He says it is slant, right? Frames same, PD same, fitting height same. So this is the question. Now Ilangu wants to understand what is the problem and how do we solve this particular case, right? So basically, first time what I would suggest here is to just have distance prescription separate and near prescription separate to see whether the customer is having the same slant effect even without the progressive. First thing I would check that. Okay, there are chances left eye 0.75 cylinder might cause some initial adaptation problems. Okay. Addition 275 is same for both the eyes, but overall it is I'm sorry, there's a background problem. Hold on. I'll just shut my door. Just give me a second.
Excuse me, guys. I was at home. Sorry for that. Okay. So I was just saying, keep it separately on the trial frame. Just check whether customer is having the same complaint even with the trial frame. Now, if it is also present with the trial frame, chances are customer is taking time to get adapted to the new prescription. Okay. Second important factor which you should consider here, customer is wearing a progressive. We are giving him one more progressive. Typically, if you notice this particular prescription, it is all plus 0.5 with plus 0.75, and for the right eye, and left eye it is plus 1 with plus 1 earlier. Now it is plus 0.5 with plus 1 for the right eye, and left eye it is plus 1 with plus 1.75. Right, Ilango? So what happens? Yes, sir. All plus factors, if the previous progressive is of one particular design and it's going to give this plus power in a back surface design. There's a free-form lens, right? There is a very good saying that everybody wants to give a free-form lens. It is the latest technology. But you will find at times it will not work for plus lenses. Why? Because free-form is all done on the back side, and conventional lens, which is older technology, is done on the front side. So if the progressive design is on the front, there are chances customer gets adapted to it, because all of you know as an optometrist, the front part is plus. Okay, it's a plus base curve. So customer enjoys a magnification. He gets easily adapted to a conventional progressive, and he may take some time to get adapted to a back surface progressive. So it is just a adaptation time. If customer is ready to give you that time, please explain him that it may take some time to get adapted to the new lens. If the customer is not ready to accept this, then you will have to switch him to, if I have to tell you on a very flat term, you will have to reduce the design. Maybe you would have given a high-end back progressive design. You would have to look at a design which is double side progressive or a front end progressive. Okay, so based on customer complaint, it will change. But now the major thing, what we have found out in the troubleshooting is, it is important that we document everything. At times we turn a blind eye. We consider that whatever we have noted, right? Or say at times we don't document anything, and then we say कि old और नया दोनों same था, frame same था. Okay, in terms of how the frame is sitting on the face, we say same tha. But just imagine, guys, if I am a customer, just look at me, just look at my temple. If I wear this frame like this, you feel that my reading zone will remain same? No. If I wear it like this, you see my temple where it is going. See the angle here. Okay. Now maybe because of wear and tear, chances are the frame, old frame which is sitting on the face, is giving him the benefit of the angle and everything. But the new frame is new and he is wearing it like this. So this additional angle and all is not there, it is missing. And that could also be a reason for him not getting adapted, or say complaining of image not looking straight. Okay, so all these details is important. We need to consider all this. Sometimes just a little nose pad adjustment, sometimes little pantoscopic adjustment is enough for you to troubleshoot this particular customer. Now, in Ilangu's case, he told me that everything was same, everything was exactly same. Let us consider even the old and new frame was same, even the wearing position on the face was same. Then we have to then think from the design perspective, the logic which I gave. Right? So Ilango, if it is clear, we'll go to the next question. Okay, sir. Okay. Right. Okay. Thank you, sir. I think we take our next question. What is the advantage and disadvantage of progressive lenses? Okay. Question asking by Nitesh sir, sorry. Nitesh, okay. Hi Nitesh, thanks. Very good question. Basically, if you want to ask about the advantages, these days, our intermediate work. Now this intermediate work is something like one word, but it is a range. Unlike our near vision, which is say right up to 50, maximum 55 centimeter.
irrespective of whatever is the height of the individual, it is going to be maximum 55 and the closest would be maximum up to 30. तो 30 से 60 50 के बीच में जो भी है वो नियर हो जाता है. 60 से 3 meters तक का जो भी है वो आपका इंटरमीडिएट हो जाता है, राइट. नाउ फॉर यू टू एक्सेस दिस जोन विच इज बिटवीन 50 सेंटीमीटर to 3 meters, ओके, ये हमेशा लाइक यू नो आपकी आंखों पे कॉम्प्रोमाइज ही होता है. Like फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर अ प्री प्रेसबायो या फिर प्रेसबायोपिया, इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन हमेशा रहता है बिकॉज योर आई इज एक्चुअली ट्राइंग टू अकोमोडेट फॉर दिस डिस्टेंस, एंड जो भी चीज इसके बीच में होती है उसमें आपकी आंखों पे स्ट्रेन होता है. Now why I am considering only 50 centimeter to 3 meter, anything about 3 meter या फिर 4 meter के ऊपर आपका डिस्टेंस हो जाता है. तो इफ यू डोंट हैव एनी पावर इट्स फाइन, बट जहाँ पे 3 मीटर से शुरू होता है वहां से आपको थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट करना होता है बिकॉज इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स क्लियर, ठीक है. अभी 3 मीटर का जो भी है, 3 मीटर से आपके रीडिंग डिस्टेंस तक, आप अगर अभी नए ऑफिस इमेजिन करो या फिर करंटली व्हाट वी आर लुकिंग एट वो इमेजिन करो, तो ऑल दिस आर एट इंटरमीडिएट सेगमेंट. तो ये इंटरमीडिएट विजन आपको एड्रेस करने के लिए यू नीड अ स्पेक्टिकल. अभी ऐसे भी हो सकता है कि आप सिर्फ 3 मीटर पे काम ना करो, आपको 1 मीटर पे भी जरूरत हो, आपको 50 सेंटीमीटर पे भी जरूरत हो, आपको 2 मीटर पे भी जरूरत हो. अगर आप सिर्फ एक जिसे ट्राईफोकल बोलते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट का लाइक हाँ जो आपका एडिशन है उसका हाफ डाला जाता है, अगर वैसे लोगे तो आप फिक्स डिस्टेंस पे रह जाओगे. बट इन प्रोग्रेसिव यू हैव अ सीमलेस विजन. आपको डिस्टेंस से नियर तक का हर विजन देखने के लिए उसमें पावर स्लोली प्रोग्रेस होता है. तो यू कैन एक्सेस डिस्टेंस, यू कैन एक्सेस इंटरमीडिएट, यू कैन एक्सेस नियर. प्रोग्रेसिव को अगर हम बता रहे हैं कि 3 विजन जोन देगा, वो भी गलत है. इट इज अ मल्टीफोकल लेंस, ठीक है. आपको डिस्टेंस से लेके नियर तक जहां पे भी आपकी विजन डिमांड है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मूव योर चिन, यूज द राइट स्पॉट एंड यू विल बी एबल टू सी द सीमलेस विजन. तो मान लो अगर मैं प्रेसबायो नहीं हूँ, आई एम अ नेचुरल बंदा, नेचुरल गाय, एंड इफ आई एम एक्सेसिंग माई विजन डिस्टेंस से लेके नियर तक, दैट इज अ सीमलेस विजन. प्रोग्रेसिव आप दे रहे हो तो आप सीमलेस विजन कंटिन्यू कर रहे हो इवन फॉर द प्रेसबायो. So that is the biggest advantage that you have with the progressive lens. Disadvantages with progressive lens, जैसे मैं बताऊंगा कुछ लोगों को अडेप्ट करने में तकलीफ होती है. वैसे तो बाइफोकल के साथ भी तकलीफ होती है, ठीक है. जस्ट बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर डिसएडवांटेज, मैं सबसे एक स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा. बहुत साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें बाइफोकल की अडेप्टेशन को देखा गया था, ठीक है. प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन तो वैसे बहुत चर्चे में है, बहुत सारे स्टडीज भी है. यू हैव सो मेनी रिसर्चेस ऑन प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन, बट देयर इज आल्सो रिसर्च ऑन बाइफोकल अडेप्टेशन. और आपको सरप्राइजिंग होगा कि उसमें 56% लोग बाइफोकल को अडेप्ट नहीं कर पाए. जंपिंग इफेक्ट जो होता है बाइफोकल में, उसे अडेप्ट नहीं कर पाए. लेकिन प्रोग्रेसिव जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तब दिस नंबर वे मच लेस. 39% ऑफ लोग प्रोग्रेसिव को अडेप्ट नहीं कर पाए इनिशियली. अभी तो वैसे अडेप्टेशन बहुत हाई है बिकॉज डिजाइन भी बहुत इंप्रूव हो गए हैं. तो अडेप्टेशन एक चीज है विच इज द डिसएडवांटेज. सेकेंड थिंग, जैसे पहला क्वेश्चन हमने शुरू किया था, वन आइड के लिए हम नहीं दे सकते हैं, लिमिटेशन है. प्रोग्रेसिव में और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपका पावर बहुत बदल रहा है तो बजट वाइज आपको हिट करेगा. इट इज गोइंग टू बी ए कॉस्टलियर ऑप्शन, ठीक है. इट इज नॉट एज सिंपल एंड एज बजटेबल ऑप्शन लाइक योर बाइफोकल्स, ठीक है. एंड मोस्टली कभी कभी अगर कस्टमर अडेप्ट नहीं करना चाहता है तो हो सकता है कि प्रोग्रेसिव आप कितना भी बेटर डिजाइन दे दो, he cannot get used to it. तो ये सारे थोड़े डिसएडवांटेजेस है प्रोग्रेसिव के, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर विजन को आप मायने देना चाहते हो तो इट इज एज गेटिंग बैक टू द विजन विच यू हैड बिफोर प्री प्रेसबायोपिया, राइट. Nitesh, is answers the question? Yeah, okay. Yeah, thank you. We'll move on to the next question, Ikram. Yes, sir. Next question asking by Devesh, sir. What type frame is best for progressive lenses? Okay. यहाँ पे I'll try to keep it very simple.
frames that are best for your progressive, I would say any frame that is easily adjustable. Okay, frame which can help me bend the temples, frame which can help me easily move the nose pads, frame जिससे मैं like I can give a wrap angle. ये सारी चीजें, if I'm able to do this adjustment on the frame, even if it is a rimless, even if it is a Supra, even if it is a full frame, whether it is metal or plastic, if it is adjustable, it is the best frame for the progressive lens. Now, also I would want to highlight that acetate frames जो होती है प्लास्टिक में is best, लेकिन उसमें हीट लगता है. There are some frames which are TR, वो बहुत फेमस है आजकल के, इसमें TR है, Ultem ले लो. All these are very lightweight plastic frames. But the only problem is they are like a memory material जहाँ पे frame को आप bend या use नहीं कर सकते हो, and the problem is once it is fixed, it is fixed. Once you are wearing, the fit remains same. तो आप उसमें adjustment नहीं कर सकते हो. So at times when you are suggesting a progressive, and if you have to select a frame for the customer, only thing that you should be looking for is if the frame is adjustable or not. ठीक है, फ्रेम अगर एडजस्ट किया जा सकता है तो प्रोग्रेसिव आप आराम से डिस्पेंस कर सकते हो. जो भी कस्टमर को दिक्कत हो रही है अडेप्टेशन में, उसे आप एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हो. राइट? Okay, thank you, sir. Yeah. So let's move on to next question. Yes, sir. We have next question. Just give me a couple of minutes. Yeah. देवेश, मैंने आपके चैट में पढ़ा है कि you have sent 2 questions. One question we answered. Do you want to actually put forward the next question? Sir, next question, which is asking by MI, I don't know, MI Note Phone 9. Okay. Okay. Sir, what B size? What B size is perfect for progressive lenses? Okay. So as I answered that, we should have a B size. Basically, like there are different corridors available. Ideally, in the current scenario, any B size which is crossing 28 plus, 28 के बाद जो भी values है can be fitted with a progressive lens, right? So you cannot restrict yourself to a particular B size. But one advantage what we have in the current scenario is optical trend is towards a bigger frame. So यहाँ पे we are having a very large B size available. Any customer who is demanding for a small frame, please make sure that you have minimum 28 B size, which is the total height of the lens. 28 hai, it is good to go ahead with the progressive dispensing. But again, remember, smaller the size of the corridor, ज़्यादा distortion आएगा lens में and adapt करना मुश्किल होगा. So make sure that you are giving a shorter frame only to people who have already used a shorter frame, and it will be easier for them to get adapted. Second चीज जो आपको ध्यान रखनी है when you are selecting the B size, even if the customer is wearing a shorter frame, अगर उनका addition 0.5 diopter तक नहीं change हुआ है, सिर्फ 0.25 change हुआ है, मान लो previously it was 1.25, अभी 1.5 है, it's not 1.75, 0.5 diopter का addition change नहीं हुआ है, then you can go with the narrow frames. Otherwise, it is always advisable that आप comfortable 30-31 mm size का frame suggest करो. If the suggestion is at your hand, you have to select a comfortable 30 mm B size का frame. Okay, thank you so much, sir. We have next question. Sir, actually में this is my question कि जो भी progressive lenses होते हैं like normal corridor और wide and wide customized, so basically इनके design में जो फर्क होता है, so actual में जो distortion portion होता है
तो उसमें ये कैसे डिस्टॉर्शन पोर्शन को कम करते हैं, मतलब कौन सी टेक्निक यूज होती है? Okay, तो बेसिकली मैं लाइक आई विल नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ वाइडर कस्टमाइज्ड एंड ऑल। मैं बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी समझाता हूँ कि कैसे प्रोग्रेसिव में हम इसे इम्प्रूव करते हैं। आप कोई भी प्रोग्रेसिव लेंसेज को लोगे तो उसमें डिस्टॉर्शन होता है, राइट? एंड इस डिस्टॉर्शन को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस डिस्टॉर्शन के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। ओके, तो इसके इफेक्ट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे पहले तो अगर आप लोगे कोई भी पावर हो, उस पावर के हिसाब से जो डिस्टॉर्शन रिंग बननी है प्रोग्रेसिव में, दैट विल ऑलवेज बी देयर, यू कैन नॉट रिमूव इट। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेलेक्ट बेस कर्व। बेस कर्व क्या होता है कि ब्लैंक का जो कर्व है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। दैट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट द डिजाइन। यू कैन सेलेक्ट कि कौन से मेथड से आपको लेंस बनाना है। ओके, वो फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी से बन सकता है, डबल साइड प्रोग्रेसिव से बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी होती है जिससे आपके लेंस के सरफेस और भी बेटर हो सकते हैं, राइट? नाउ इसके अलावा अभी नई टेक्नोलॉजीज जो आई है उसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर जो चश्मा पहनने वाला है वो कौन से एंगल में, ठीक है, उसे हम पोजीशन ऑफ वेयर डेटा बोलते हैं। जैसे कितना एंगल पे पहनेगा, फैंटास्कोपिक टिल्ट कितना है, आंखों से वो लेंस कितना दूर होने वाला है, उसे वी कॉल इट एज बैकवर्ड एक्स डिस्टेंस। एंड थर्ड, जो फ्रेम पहनने वाला है उसका रैप, फेस के आगे उसका रैप कितना है, ये भी हम मेजर करके डिजाइनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें इतने सारे पैरामीटर्स मिल रहे हैं तो आपका जो बेसिक लेंस होता है, बेसिक लेंस डिजाइन होता है, जो भी फ्री फॉर्म डिजाइन है, उसमें अगर आप बेस कर्व सिलेक्शन लगा दो तो थोड़ा डिजाइन बेटर हो जाता है। बेटर कैसे होता है कि ये जो डिस्टॉर्शन लेंस की होती है वो आपको फील होनी कम हो जाती है। अभी उसे और सुधारना है, देन आप उसे बाकी के पैरामीटर्स दे दो। जैसे फ्रेम के पैरामीटर हम बोलते हैं, बैकवर्ड एक्स डिस्टेंस, फैंटास्कोपिक टिल्ट, रैप एंगल आप दे दो, एंड दे आर एबल टू एक्चुअली कस्टमाइज द लेंस बेसिस दैट। ठीक है, अभी इसके आगे और टेक्नोलॉजी लगती है, जैसे कुछ रिसर्च के बेस पे, जैसे कुछ कंपनी के एग्जांपल्स हम लें तो एसएलआर में एक लेंस नया आया है जिसे वेरिलेक्स एक्स सीरीज बोलते हैं। तो वहाँ पे दे आर टेकिंग के बेसिकली कितनी दूर पे, लाइक इंटरमीडिएट विजन पे कॉन्स्टेंटली आंखें कैसे मूव होती है और उसके हिसाब से कैसे जोन्स को प्लेस करना चाहिए अडेप्टेशन फास्ट करने के लिए। अगर आप जाइस का लोगे तो उनके पास ऐसी मशीन है जहाँ पे अबेरोमीटर भी फिट हुआ होता है और आंखों की सारी डिटेल्स वो पूरे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे आइस्क्रिप्शन बोलते हैं, एंड उसे नेक्स्ट लेवल पे वो लोग ये करते हैं। देयर इज ऑल्सो लेंस फ्रॉम टोकाई जो जापानीज मेक है। दे एक्चुअली स्टडी द ब्रेन, ब्रेन कैसे काम रहता है, व्हाट इज ब्रेन वेव्स, हाउ द ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग टू अ डिजाइन, और उसके बेसिस पे जिसमें ब्रेन का और आंखों का सबसे ज्यादा स्ट्रेस, विजन स्ट्रेस कम है, वो डिजाइन कस्टमर को दिया जाता है। सो ऑल दीज आर एडिशनल रिसर्चेस जो आपके पोजीशन ऑफ वेयर के ऊपर लगता है। एंड स्लोली जैसे 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 लेंस में आप एडिशनल डेटा फीड करते जाते हो, लेंस का जो डिस्टॉर्शन फील होना, जो महसूस होना है, वो आपको कम होता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हो वैसे वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी आप कस्टमर को कैसे पिच करोगे या फिर अपने पेशेंट को कैसे समझाओगे। बहुत सी चीजें ऐसी भी है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी है जहाँ पे दोनों आंखों के चश्मे या दोनों आंखों के लेंस एक साथ बनाए जाते हैं। ये बनाने से फायदा ये है कि दोनों आंखों का डिस्टॉर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों आंखों में इक्वली क्लियर जोन हम दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसे समझने के लिए कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होगा। आप टेक्नोलॉजी का नाम बता सकते हो, लेकिन टू बी इन अ बेटर पोजिशन टू मेक देम अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई टू कनेक्ट इट विद सम इजी एग्जाम्पल। इजी एग्जाम्पल के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको कस्टमर को समझाने में दिक्कत नहीं होगी, राइट? Okay, thank you, sir. Sir, one more question is flat frame जिसमें facial wrap और wrap angle नहीं होता है, क्या वो प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए बेनिफिशियल है या फिर वो डिसएडवांटेज उनके कुछ भी?
प्रोग्रेसिव लेंसेज में? तो जनरली इफ यू टेक एनी फ्रेम, ठीक है, उसमें हल्का सा रैप एंगल होता ही है. वाई वी हैव रैप एंगल इज बिकॉज अगर आप अपना फोरहेड देखोगे, आप सब लोग अगर आप लाइक फोरहेड फील करोगे, तो फोरहेड आप लाइक इट इज नॉट लाइक स्ट्रेट. आप अगर ऐसे करके टच करके अपना फोरहेड पकड़ लोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू क्लोज इट. दिस मीन्स दैट जनरली अपना जो फेस है देयर इज अ रैप टू इट. तो इसलिए हर एक फ्रेम में, कोई भी ऑप्टिकल फ्रेम आप लोगे तो उसमें रैप हो. नाउ कुछ फैशनेबल सनग्लास फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जितना फ्लैट रहेगा उतना आंखों से दूर रहेगा. जितना आंखों से दूर रहेगा ऑटोमेटिकली आपके विजन जोन्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, ठीक है. लेंस का डिजाइन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द आई, chances are that you will not get the whole benefit of the zone. आपने वो पिन होल कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबको पता होगा, राइट. जैसे जैसे लाइक दूर से आप देख रहे हो तो बहुत लिमिटेड आपको दिखता है, जैसे जैसे पास आते हो तो लाइक आपका फील्ड खुल जाता है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट इवन फॉर प्रोग्रेसिव. जितना आंखों के पास रहेगा, ठीक है, इट इज बेटर. लेकिन इतना पास भी नहीं होना चाहिए कि लैशेस लग जाए, ठीक है. बट इट इज ऑलवेज सेफ दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ रैप एंगल. इट शुड नॉट बी वेरी फ्लैट फ्रेम. बहुत फ्लैट नहीं होना चाहिए, सम अमाउंट ऑफ रैप होना चाहिए. सिमिलरली बहुत ज्यादा रैप अगर होगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट लाइक जो भी फ्रेम ऑप्टिकल फ्रेम्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर्स इसका ध्यान रखते हैं एंड दिस इज दैट दे डिजाइन द फ्रेम. Okay, Ikra, that answers. Yes sir. I have next question, sir. Sir, excuse me, sorry for interrupt you. Sir, Yeah. if suppose आप जो स्पोर्ट मॉडल में फ्रेम बता रहे हैं जिसमें कर्व है ज्यादा, उसकी बात करें तो अगर हम बेस कर्व अगर प्रॉपर ले और उसके अकॉर्डिंग हम बनाए तो क्या वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्या? क्योंकि हमने एक दो क्लाइंट को मैंने स्पोर्ट्स मॉडल में डिस्पेंसिंग किया है प्रोग्रेसिव का, बट अभी तक उसमें कंप्लेन नहीं आया है सर मुझे, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर बेस कर्व दिया था. और प्रॉपर फिटिंग और एवरीथिंग ओके था, तो इसलिए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे. तो मैंने मुझे ये भी नहीं मतलब बताया उन्होंने कि बताया था कि उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन मुझे तो अभी कोई ऐसा फेस करने में मतलब ऐसा फेस नहीं किया मैंने अभी तक प्रॉब्लम स्पोर्ट्स अच्छा मॉडल. अमित, आप मुझे उसका प्रिस्क्रिप्शन बता पाओगे जल्दी, मतलब कोई भी एक केस का. सर अभी तो उसका ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन नहीं था सर. सिलेंडर था 0.75 का सिलेंडर था, एडिशन प्लस या माइनस? माइनस सिलेंडर था, माइनस 0.5. ठीक है जी. जनरली अगर आप देखोगे अमित, अगर ऐसा केस आपको आए जहाँ पे माइनस स्पेरिकल है, -3 या 4, और उसमें अगर आपको स्पोर्ट्स सनग्लासेस बनाना है, जनरली आप क्या देखोगे कि अगर माइनस में अगर आप बेस कर्व ज्यादा दे रहे हो ना, तो एज का थिकनेस बढ़ जाता है, ठीक है. तो एज थिकनेस भी बढ़ेगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपका लाइन ऑफ साइट एंड ऑप्टिक सेंटर दोनों एक एक्सिस पे नहीं होता है, वो थोड़ा घूम जाता है, ठीक है. तो उसके लिए कॉम्पनसेशन लगाना पड़ता है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हाई बेस कर्व पे नहीं दे नहीं सकते हो. देयर आर सर्टन स्पोर्ट्स ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरर जहाँ पे प्रोग्रेसिव वो उसके हिसाब से बनाते हैं, जहाँ पे ये जो भी एक्सिस ये है उसका कॉम्पनसेशन चलता है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे एक्चुअली प्रिस्क्राइब प्रोग्रेसिव. तो ऐसा एक अगर इंडिया में हम बात करें तो नोवा करके एक है कंपनी विच एक्चुअली मेक्स दिस लेंस, एंड -8 तक पॉसिबल है. मतलब अगर 8 बेस कर्व में आपको -8 चाहिए वो भी मिलेगा आपको. तो इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट गिव, लेकिन बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरर उसे रेडी कर सकते हैं, एंड उसमें भी लाइक अडेप्टेशन कभी कभी प्रॉब्लम होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है. स्मॉल प्रिस्क्रिप्शंस के लिए ऑलवेज यू कैन गो अहेड एंड गिव, नो प्रॉब्लम. हमारे यहाँ एक जेलॉक्स कंपनी करके लेंस है, जेलॉक्स वो इंडिया में भी है, तो वो ऐसी गारंटी वो कह रहे हैं कि हमारा जो लेंस आप स्पोर्ट्स मॉडल में फ्रेम में आप फिट करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो गारंटी दे रहे हैं 95% 100%. तो कॉम्पनसेशन उनके पास कॉम्पनसेशन होगा, विजन एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस का कॉम्पनसेशन करने का ये होगा, इसलिए गारंटी. अच्छा, ओके, ठीक है. तो वैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. ओके. सर अगर आई का अलाइनमेंट सही नहीं है, लाइक एक आई नीची है थोड़ी सी, लाइक सिंड्रोम्स में होता है वो,
तो उसमें क्या होता है कि पीडी एक हमारा नीचे रहता है, एक फिटिंग हाइट, और एक फिटिंग हाइट थोड़ा ऊपर रहता है। सो उस केसेस में हमें पेशेंट का आइडियली फिटिंग हाइट क्या लेना चाहिए? जो आई आपका नॉर्मल है उसका फिटिंग हाइट, या फिर जो आपका आई थोड़ा सा डिस्टर्ब है उसका? तो बेसिकली यहाँ पे इतना प्राइमरी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक यू नो नॉट ओनली सिंड्रोम्स, कभी कभी ऐसे भी होता है कि फेशियल एसिमेट्री होती है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि नोज लाइक यू नो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जब आप आईज देखते हो तो दोनों स्ट्रेट है, लेकिन नोज पे जब चश्मा बैठता है तो इट इज क्रॉस, या फिर फिटिंग हाइट ऊपर नीचे है। तो इसमें लाइक टोसिस वाले क्लाइंट में हो सकता है। टोसिस वाले टोसिस अगेन अगर आप आंखें खोल के देखोगे तो लेवल ऑलमोस्ट सेम रहती है, इतना ऊपर नीचे नहीं रहता है। फिर भी आई जस्ट हैव वन गाइडलाइन फॉर ऑल द केसेस। आपको अगर दोनों आंखों में 1 mm का फर्क आ रहा है, ठीक है, इफ इट इज ओनली 1 mm फर्क, मतलब राइट आई अगर आप मेजर कर रहे हो तो 21 आ रहा है, लेफ्ट आई मेजर कर रहे हो तो 20 आ रहा है, ठीक है, आप दोनों का हायर नंबर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 mm से ज्यादा फर्क आ रहा है, राइट आई 22 आ रहा है, लेफ्ट आई 20 आ रहा है, आपको जो मेजरमेंट चश्मे के पीछे फिटिंग हाइट का आ रहा है वही मेजरमेंट आपको फाइनल मेजरमेंट देना है फिटिंग करवाने के लिए, राइट सर बट जब वो कंपेयर करेगा, तो जब वो कंपेयर करेगा सेपरेट, तो फिर उसको जो लेफ्ट आई से, इफ सपोज लेफ्ट आई का 20 है और राइट आई का 22 है, राइट, तो उसको तो प्रॉब्लम फेस होगी ना सर, क्योंकि हमने तो बनाया है 22 के हिसाब से, राइट। लेफ्ट आई का उसका आई लेवल ही 20 पे है, तो वो अगर लेफ्ट आई से देखेगा तो उसे प्यूपल सेंटर तो 20 से ही दिखेगा ना। तो अगर 1 mm के ऊपर चेंज है तो गिव द सेम वैल्यू, जो सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब मान लो आप मेरा मेजरमेंट ले रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल, राइट आई में 21 आ रहा है, लेफ्ट आई में 20 आ रहा है, दोनों का आंखों के लिए 21 दे दो, प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड। अगर आप मेरा मेजरमेंट ले रहे हो, कोई एसिमेट्री है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है या फिर आंख ही ऊपर नीचे है या कोई सिंड्रोम है, मान लो राइट आई के लिए 22 आ रहा है, लेफ्ट आई के लिए 20 आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप सेम वैल्यूज दोगे, ठीक है। आइडियली प्रोग्रेसिव डिस्पेंसिंग में 3 mm या 4 mm के ऊपर अगर आपका वर्टिकल हिल रहा है ना, इट इज नॉट सजेस्टेड टू गिव अ प्रोग्रेसिव डिस्पेंसिंग में, आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे 2 mm की ही बात करेंगे। वेरी रेयर ऐसे केस होते हैं जहाँ पे 3 mm की गया है एंड कस्टमर को अडेप्ट हो गया है, बट दोज आर रेयर केसेस, क्योंकि अगर वर्टिकली ये हिलेगा बहुत तो लाइक यू नो प्रोग्रेसिव का जोन्स इक्वली काम नहीं करेगा। तो 2 mm तक टॉलरेबल है, 2 mm 3 mm मैक्स, उसके ऊपर यू नो इट इज रियली डिफिकल्ट। ओके सर, टेल मी वन थिंग, इफ सपोज अल्टरनेटिव एक्सोट्रोपिया है, तो उस कंडीशन में हम प्रोग्रेसिव का मार्किंग कैसे करेंगे? सेपरेट करके करेंगे, राइट, या एक साथ करेंगे? तो जनरली आपको क्या करना है, आपको एक आंख बंद करके फिक्सेशन जो आई फिक्सेट कर रही है उसका मेजर लेना है, ठीक है। अभी मान लो मुझे ऑल्टरनेटिंग ईसो है या ऑल्टरनेटिंग एक्सो है, तो जब आप इस आंख का मार्क कर रहे हो, व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, ये आंख बाहर होगा, जस्ट क्लोज इट सो दैट इट डज नॉट कम एंड टेक द फिक्सेशन। इसे बंद कर दो एंड एक फोकस दे दो, मुझे एक पॉइंट दे दो, मे बी आपका लाइक यू नो इफ यू आर चेकिंग माई राइट आई, आपकी लेफ्ट आई मुझे सीधी देखनी है, एंड देन यू नो यू कवर दिस साइड, देन दिस आई कम्स एंड टेक्स द फिक्सेशन। जैसे मैं सीधा देख रहा हूँ, आप इस आई को मार्क कर सकते हो। तो जब आंखें फिक्सेशन ले रही है तब आपको मार्किंग लेना है, राइट, डोंट मार्क इट इन द प्राइमरी पोजीशन। तो क्या उसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब यूनिओकुलर देखेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आप ही ने बताया वो ऑल्टरनेटिंग फिक्सेशन है, तो वो एक ही आंख को एक टाइम पे यूज करेगा, और जब वो एक आंख को यूज कर रहा है तब वो अपना फिक्सेशन लेके यूज करेगा, वैंडरिंग पोजीशन में नहीं यूज करेगा। तो जब फिक्सेशन ले रहा है तो उसका प्यूपल और लेंस का सेंटर मैच होना चाहिए, तभी वो जोन, तभी वो प्रोग्रेसिव का ये ले पाएगा, लाइक यू नो जो भी बेनिफिट है वो ले पाएगा। थैंक यू। Right, I think I can take one last question, क्योंकि अभी 4 मिनट है। I can take one last question for this session. Okay, thank you so much, sir. I have one last question. Okay. So, basically, sir, जैसे कोई पेशेंट बाइफोकल पहन रहा है 5 years से, so ideally उसको नॉर्मल कॉरिडोर एडवाइस करना चाहिए, वाइड और वाइडर, मींस सॉफ्ट प्रोग्रेसिव लेंसेज और हार्ड?
अगर 5 years से बाईफोकल पहन रहा है, बेसिकली आप देखोगे तो जनरली लाइक यू नो मैं जनरली एज को पकड़ के चलता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. मान लो इस कस्टमर ने 41 years में शुरू किया और अभी 5 साल तक उसने बाईफोकल पहना है. He has come to 46, तो उसका जो एडिशन होगा वो बढ़ गया होगा. ठीक है, मान लो उसने अगर 0.75 से शुरू किया तो 1.25 आ गया है, या अगर 1 से शुरू किया है तो 1.5 आ गया है. अभी एक लॉजिक आप सबको ध्यान रखनी है, इन अ प्रोग्रेसिव लेंस इफ एडिशन इंक्रीजेस योर डिस्टॉर्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, जितना एडिशन बढ़ रहा है उसके डबल डिस्टॉर्शन साइड में बढ़ेगा. ओके, तो अगर आप 0.25 के नीचे बढ़ा रहे हो, दोनों साइड पे 0.5 का डिस्टॉर्शन आ सकता है. 0.5 बढ़ा रहे हो, दोनों साइड पे एक डायोप्टर का डिस्टॉर्शन आ सकता है. ठीक है, और ये जो डिस्टॉर्शन है उसे हम अनवांटेड सिलेंडर बोलते हैं. ठीक है, वाई वी से अनवांटेड सिलेंडर बिकॉज आप लोगों को पता है कि जनरली लेंस सरफेस को एक जैसा बनाने के लिए प्लानो सिलेंडर्स ऐड होते हैं. तो बेसिकली डिस्टॉर्शन डबल बढ़ता है. अगर कस्टमर ने बाईफोकल पहना है एंड 5 साल के बाद अभी प्रोग्रेसिव फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, अगर वो बेसिक प्रोग्रेसिव पहनेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि जोन बहुत कम रहेगा. राइट, जोन कम रहेगा तो अडेप्टेशन इशू आएगा. बाईफोकल में उनको जैसे जनरली डिग्री जो होता है बहुत बड़ा होता है. इवन इफ यू टेक अ के बाईफोकल, डी बाईफोकल का तो और भी वास्ट होता है. के बाईफोकल लोगे तो भी उसका जोन जो है वो बड़ा रहता है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू गिव हिम नॉर्मल का जोन उससे ऑलमोस्ट यू नो आधे से भी कम हो जाता है. तो गेटिंग अडेप्टेड टू दैट डिजाइन इज लिटिल चैलेंजिंग. तो अडेप्टेशन कॉन्सेप्ट से अगर आप सोचोगे तो 5 years अगर कस्टमर ने बाईफोकल पहना है तो आपको मिड लेवल डिजाइन से शुरू करना है. ठीक है, मिड लेवल कैन बी एनीवेयर, समथिंग लाइक जैसे लाइक यू नो बेसिक फ्री फॉर्म लेंस हो गया, या फिर लेंसेज विच इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ मिड. मतलब जैसे कोई भी अगर आप ऑप्टिशियन चेन में रहो या कोई भी रिटेल में रहो तो आपको बेसिक प्रोग्रेसिव होता है, मिड होता है, एडवांस होता है और कस्टमाइज होता है. तो मिड लेवल के प्रोग्रेसिव से शुरू करना बेटर ऑप्शन रहता है. राइट, सिमिलरली इट इज नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे बाईफोकल है. एडिशन का एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर एडिशन आपका 1.5 से बढ़ रहा है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू स्टार्ट ऑन यू नो मतलब कौन सा प्रोग्रेसिव आपको सेलेक्ट करना है. प्रिस्क्रिप्शंस में सिलेंडर्स भी अगर बढ़ रहे हैं तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ मिड लेवल प्रोग्रेसिव. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बेसिक प्रोग्रेसिव या नॉर्मल प्रोग्रेसिव हम नहीं दे सकते हैं. जहां पे भी आपको लगे कि लाइक यू नो फर्स्ट टाइम कस्टमर पहनना चाहता है या फिर उसका एडिशन लो है, आप बेसिक प्रोग्रेसिव भी पिच कर सकते हो. राइट, देयर इज ऑल्सो वन मोर कंसेप्शन. इसी के साथ और एक क्वेश्चन भी ऐड होता है हमेशा कि एडिशन पावर या फिर अगर बाईफोकल 10 साल पहना है, 12 साल पहना है, 15 साल पहना है, तो क्या हमें उनको प्रोग्रेसिव में चेंज करना चाहिए या नहीं. ठीक है, इसका आंसर भी इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर. ठीक है, अगर साइंस के हिसाब से लॉजिक्स पकड़ के हम चले तो एडवाइस करना सही नहीं रहेगा. द रीजन अगेन जैसे मैंने बताया, 15 साल पहन लिया है, 40 साल से अगर उसने शुरू किया है तो नाउ ही इज एट 55. ठीक है, और मान लो 55 अगर है तो मोटा मोटा उसका ऐड होगा 2 के ऊपर. 2 के ऊपर है तो साइड का डिस्टॉर्शन और भी बढ़ गया. तो गेटिंग यूज्ड टू प्रोग्रेसिव या गेटिंग अडेप्टेड टू प्रोग्रेसिव इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम. ओके, सो नाउ इफ द कस्टमर इज मोटिवेटेड, नथिंग स्टॉप्स हिम. कस्टमर को पहनना है प्रोग्रेसिव, उसे ट्राई करना है,